Hello everyone, welcome to the session. And I hope you already watched the last two sessions of quadratic equation. If not, I would recommend highly to watch those sessions, then come up to this session. Okay, those who are live, you don't have any option. आपको तो करना ही पड़ेगा. But those who are watching recording, just watch last two sessions, then come up for this session. Even though if you continue with this session, you will like know lots of things. But yeah, issue आ सकता है. That's why I would recommend last session देख लो. So that आपको कोई issue ना आए. This is the third session of quadratic equation. And apart from this, those who want a course in a structured manner, you can look for enrolling into the course. It is free of cost. Just visit PrepBee.in and you will find this course. You can enroll into it. It is free of cost. We are not going to charge anything. Also, if you are looking for mentorship session or a mentor to guide you throughout the preparation journey, you can look for these courses. It is also available on PrepBee.in. they are charging some charges. तो ठीक है, यहाँ पे discount code लगाओ. You will get a maximum discount from here. Also, those who don't want to go to a prepbee.in and enroll into it, for them but पढ़ना भी है, for them simply visit a YT channel. इतना तो मेहनत करना पड़ेगा. यहाँ prepbee पे जाओ. आपको स्ट्रक्चर्ड मैनर में सारे के सारे जो मतलब जो प्लेलिस्ट हमने बना रखे हैं, VRC for QA for CR and all, you can check out those playlist. Okay. And those who just started preparation, I would highly recommend, or those who already started, take this mock on 29th of June, 8 p.m. onwards. You can take any time after 29th June. It is free of cost and it is all India mock cat. So I would highly recommend to take a mock. Scholarship तो है ही, scholarship है, ये अलग मिलेगा. Those who are going to take the mock on 29th of June, they will get a scholarship. इसके बाद जो भी करेगा, like 30th को करेंगे अगर कोई, तो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा गाइस. एंड दिस आर व्हाटएवर रिवॉर्ड्स आर देयर, you won't get these rewards. So I would recommend highly to take on the 29th of June. ठीक है. Also, ये मैं भी अटेम्प्ट कर रहा हूँ. 29 को नहीं करूँगा, नहीं तो पता चले किसी का स्कॉलरशिप मैंने ही ले लिया. आई विल अटेम्प्ट ऑन 30th एंड नेक्स्ट डे और डे आफ्टर नेक्स्ट डे जो भी है ट्यूसडे को सिंपली. सो आई थिंक ट्यूसडे इज ऑन 2nd of जुलाई. मैंने कंफर्म कर लिया 2nd of जुलाई है ट्यूसडे. कल मुझे लगा था 1st of जुलाई होगा, बट 2nd of जुलाई है. तो मैं इस दिन इसके जो LRDI है उसका मैं एनालिसिस करूंगा. सिमिलरली, इफ पॉसिबल आई विल टेक QA एनालिसिस टू. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. दिस इज व्हाट वी आर लर्निंग, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप हमने बहुत सारी चीज कवर कर चुका ऑलरेडी. बेसिक्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फॉर दोज हु डोंट नो व्हाट इज द बेसिक, एक सिंपल चीज बताता हूँ. जनरल फॉर्म, ये तो सबको पता ही होगा. क्या होता है जनरल फॉर्म? ax² + bx + c = 0. तो ये तो आपको सबको पता ही होगा, जनरल फॉर्म. एंड इससे ज़्यादा डिटेल जानना है आपको तो यू कैन वॉच लास्ट टू सेशंस. लेट्स कम टू द क्वेश्चंस. बिफोर वी गो अहेड विद दिस क्वेश्चंस, एनी वन ऑफ यू हैव डाउट ऑफ द लास्ट सीट? जिसने भी लास्ट सीट सॉल्व किया है, कुछ डाउट्स है? इफ यू हैव, डू लेट मी नो सो दैट आई कैन सॉल्व इट राइट नाउ. जल्दी बताओ. एनी डाउट, any question which you found difficult or unable to solve? नो डाउट, नो डाउट. ओके, चलो बढ़िया है. अगर डाउट नहीं हो तो. इतना इजी था क्या वो शीट? चलो इतना इजी है तो बढ़िया है. लेट्स कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे. नाउ सी दिस क्वेश्चन हियर. व्हाट, देखिए, दिस इज समथिंग न्यू क्वेश्चन, थोड़ा नया है. आई वुड रिकमेंड यू टू ट्राई. देखो कितना आपको समझ में आ रहा. एंड उसके बाद मैं फिर बताता हूँ क्या लॉजिक है इसके पीछे. यू हैव 2 minutes टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. 2 मिनट के लिए ट्राई करो. हुआ तो ठीक, नहीं तो मैं हुई. ट्राई इट. Those who are new, like Mr. XYZ and Maitri, I would recommend you try whatever knowledge you have. Then I will going to share my answer and solution for the same. और bet करता हूँ solution तो समझ में आ जाएगा.
Just give a try. You have 2 minutes. So, what is the question asking to you? If both A and B belong to set 2, 3, 4, 5, then the number of equation of the form ax square plus bx plus 1 is equal to 0 having real roots is। तो यार देखो सिंपल सा है। सबसे पहले तो इक्वेशन क्या है यहाँ पे? इक्वेशन हमें गिवन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। नाउ यू know that equation is this. Also it is mentioned a and b belongs to, like my a and my b, it belongs to whom? This belongs to a set of 2, 3, 4, 5. This is the set जिससे ये बिलोंग करता है, राइट ना। ये रिप्रेजेंट करता है बिलोंग्स का, ये साइन है, सेट थ्री में पढ़ लोगे आप। एंड द इक्वेशन हैविंग द रियल रूट्स, द इक्वेशन हैव्स रियल रूट्स। सो इफ द इक्वेशन हैज रियल रूट्स, हमने पहले ही बताया था, जब भी किसी भी इक्वेशन का रियल रूट्स होता है, तो रियल रूट्स कब होता है? व्हेन डी इज ग्रेटर देन जीरो एंड व्हेन डी इज इक्वल टू जीरो। इन दिस सिनेरियो the roots are real, right? In this scenario the roots are real, so I could simply say d is greater than equal to 0, then only the equation has real roots। and what is d? d क्या है? d is nothing but b square minus 4ac। this is what d। and अगर मैं इसे जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन से अगर मैं कंपेयर करूँ, इफ आई कंपेयर दिस इक्वेशन from my general form of equation, what is the general form of equation? The general form of equation is ax square plus bx plus c is equal to 0। from here I will get a equal to a, b equal to b, c मिल गया, यहाँ से कितना मिल गया? c1। so similarly I will get from here b square minus 4ac। a as it is, what is the value of c? c is 1, is greater than equal to 0, is nothing but b square minus 4a which is equal greater than equal to 0। अब देखो, मैं 4a को मैं यहाँ भेज सकता हूँ, राइट? यहाँ माइनस से इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस। इट इज सिंपली बी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 4a। ये समझे यहाँ तक? अगर आपको सी मैथ्री एंड अदर दोज हु फाउंड इट डिफिकल्ट, the reason behind you don't know the basic, so I would highly recommend to go once through a basic part of this, go through this, like जो भी है सेशन वन देख लो अच्छे से, सेशन टू देख लो। यू विल नो लॉट्स ऑफ बेसिक, जितने भी बेसिक पार्ट हमने यहाँ पे कवर कर लिए। एंड ट्रस्ट मी, क्वाड्रेटिक में से ज्यादा बेसिक है भी नहीं। ये कर लिया तो पूरा क्वाड्रेटिक खत्म, मतलब खत्म इन द सेंस बेसिक खत्म। नाउ रेस्ट डिपेंड्स ऑन द प्रैक्टिस एंड टाइप्स ऑफ क्वेश्चन यू हैव सॉल्व्ड। सो नाउ सी दिस, यहाँ से मुझे मिल गया बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4a। नाउ इफ यू विल सी हियर बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4a, अब मुझे बताया क्या गया है? मुझे बताया गया है ए और बी बिलोंग करते किससे? 2, 3, 4, 5। दिस इज अ सेट, मतलब ये सेट है, उसमें जो नंबर है उनसे बिलोंग करते हैं। इट मीन्स ए हो सकता है 2, हो सकता है ए 3 हो सकता है, A4 हो सकता है, A5 हो सकता है। यही उसका मतलब है। सिमिलरली बी भी इधर 2 हो सकता है, या तो 3 हो सकता है, या 4 या 5। दिस इज व्हाट इट मीन्स कि ये सेट से बिलोंग करते हैं, मतलब ए या तो 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, या 5 हो सकता है। सिमिलरली ए बी हो सकता है 2, 3, 4, 5। नाउ अब करना क्या है मुझे? अब मुझे सिर्फ चेक करना है। लेट मी चेंज द कलर ऑफ पेन। अब मुझे सिर्फ चेक करना है कि बी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 4a ये किस में सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब कितने वैल्यू के लिए सेटिस्फाई हो रहा है। तो यू कैन सी, आई विल टेक द हायर वैल्यू ऑफ बी। मैं किसी भी एक वैल्यू को रखूंगा, बाकी तो मेरे पास अपने आप आ जाएगा। लेट्स से आई टुक अ बी इक्वल टू 2। चलो यहीं से लोअर से ही करते हैं। अगर मैं बी इक्वल टू 2 ले लूँ, बी इज नथिंग बट 2 का स्क्वायर। व्हाट इज 2 का स्क्वायर? 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 होता है, राइट गाइस? तो 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। अब देखो, नाउ सी हियर, इफ आई टेक एनी वैल्यू ऑफ ए, कोई भी एक वैल्यू में ए की रख दूं, एनी वैल्यू ऑफ ए, इफ आई टेक 2, द लोएस्ट वैल्यू ऑफ ए, अगर मैं 2 रख दूं, इज इट सेटिस्फाइंग माई कंडीशन? इज इट 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 8? क्या सेटिस्फाई कर रहा है? यस और नो? नहीं कर रहा। नहीं कर रहा है तो सिंपली आई वुड
लाइक एलिमिनेट दिस ऑप्शन, मतलब बी इक्वल टू टू पे हमारा कोई भी वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये गया गॉन। और लेट से इसको और सिंपलेस्ट वे में करवाता हूँ कि आपको काउंटिंग में दिक्कत ना हो। सिंपलर वे में चलो, बी स्क्वायर ग्रेटर एंड इक्वल टू 4a, right? Now see here, the first option I am choosing, b equal to 2 and a equal to any option. A is nothing but 2, 3, 4, 5, any option. This condition is not satisfying because b square is 4. 4 is not greater than equal to 4a, like smallest value से smallest value जो है वो 8 बन रहा है, तो ये तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, यहाँ से वी गॉट जीरो ऑप्शंस। ओके, मतलब यहाँ पे नंबरिंग, यहाँ पे हमें एक भी वैल्यू नहीं मिला, दैट इज अ जीरो, जीरो वैल्यू फ्रॉम हियर। नेक्स्ट, now I am going to choose b equal to 3. In this case, let's see, if I say b equal to 3, 3 का स्क्वायर क्या होगा guys? What is the 3 square? 3 square is nothing but 9, right? 3 square क्या होता है? 9 होता है। तो 9 जो है ये किससे बड़ा है? 9 जो है ये किससे बड़ा है? 9 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू, नाउ सी, मुझे यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद बड़ा करना है। ओनली वन वैल्यू इज पॉसिबल, एक ही सिर्फ एक वैल्यू पॉसिबल हो रही थी, 2, बिकॉज 9 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 8। 9 तो ग्रेटर देन इक्वल टू 8 है, राइट? सेकंड वैल्यू अगर मैं रख दूं, लेट से यहाँ पे 4 इंटू 3 कर दूं, इज इट 12? सरपास कर रहा है ना ये, मतलब क्या ये पॉसिबल भी है? 9 इज ग्रेटर देन 12, नो इट इज नॉट पॉसिबल। तो यहाँ से सीधे डायरेक्टली मुझे समझ में आएगा कि फ्रॉम हियर आई विल गेट वन वैल्यू, यहाँ से मुझे एक वैल्यू मिल गई, आई गॉट फ्रॉम हियर वन वैल्यू। ओके, नाउ दैट इज इट फॉर टू। 3, 4, 5, 6 पॉसिबल ही नहीं है, सिर्फ मैं टू के लिए वैल्यू निकाल सकता हूँ। नेक्स्ट, लेट्स से b इक्वल टू 4। इन दिस केस व्हेन b इक्वल टू 4, b का स्क्वायर क्या होगा? 16। 16 की वैल्यू कितने से बड़ी है? नाउ सी हियर, a की वैल्यू 2 तो सेटिस्फाई करेंगी, ये तो मुझे समझ में आ गया है। a की वैल्यू 3 सेटिस्फाई करेंगे, 4 इंटू थ्री, 4 3 12, चलो 4 3 भी करेगा, 4 3 12 होता है तो 3 कर जाएगा। 4 करेगा, 4 4 16, यस 4 भी कर जाएगा, क्योंकि 4 इंटू फोर वॉट, 16। एंड 16 बिकॉज यहाँ पे बोल ही रहा है, क्या बोल रहा है? दिस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, इक्वल टू तो हो रहा है, तो यस, यहाँ से कितनी वैल्यूज मिल गई? 3। आई विल नॉट चेक फॉर 5, रीजन बिहाइंड, 5 चेक करने मतलब ये वाला जो है यहाँ पे 5 का मैं चेक नहीं करूंगा, a इक्वल टू 5, क्योंकि मुझे पता है वो वैल्यू ऐसे भी कंसिडर नहीं हो पाएगा, बिकॉज 5 से वो सरपास कर जाएगा, 5 4 20 होता है, मुझे 16 से छोटा चाहिए। नेक्स्ट, b इज इक्वल टू 5। इन दिस केस 5 5 25, राइट? द स्क्वायर ऑफ b इज, मतलब b का स्क्वायर 5 का स्क्वायर इज 25। नाउ सी हियर, 4 इंटू 5 ये भी कर दूं, इज इट गोइंग टू सरपास? नहीं, ये तो फॉलो कर रहा है, यस, 25 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 20। नाउ इन दिस केस मुझे पता है जब 5 सेटिस्फाई कर रहा है तो 3 भी तो करेगा ही, और 4 भी तो करेगा ही। 4 3 2 ये सारे वैल्यू सेटिस्फाई करेंगे ना जब 5 सेटिस्फाई कर रहा है, तो फ्रॉम हियर आई विल गेट 4 वैल्यूज। कितने वैल्यूज हो गए? 4 3 1, टोटल 8। ऑप्शन सी इज द आंसर। समझा? होप इट इज क्लियर। ऐसे ही किया ना सबने? चलो, अगर ये समझ में आया है तो ट्राई दिस वन, ट्राई दिस सिमिलर क्वेश्चन। बस थोड़ा आपको समझना पड़ेगा ना, सी मैं एक बार पढ़ के बताता हूँ। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ बी सी आर पॉसिबल? अब यहाँ बी और सी के पेयर्स हैं, पूछ बताया, हैव रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। नाउ इट इज क्लियर, रियल एंड डिस्टिंक्ट बोला है, मतलब क्या होगा? रियल डिस्टिंक्ट कब होता है? व्हेन डी इज ग्रेटर देन जीरो, बस यही केस है। इफ बी एंड सी अज्यूम्स एनी वैल्यू फ्रॉम द सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, अब देखो, बी और सी कोई भी वैल्यू हो सकते हैं सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स किसे कहते हैं? वन से जो स्टार्ट होता है उसे ही कहते हैं नेचुरल नंबर्स, राइट? 1 2 3 4 5 6, ब्ला ब्ला ब्ला, ये होता है नेचुरल नंबर।
तो नेचुरल नंबर के फर्स्ट 5 जो है उस नंबर को एज अ सेट कंसिडर करो। मतलब सेट क्या बन गया, 1 2 3 4 5। दिस इज द क्वेश्चन। तो ये कर सकते हो सॉल्व। सिमिलरली लास्ट वाला हमने किया उसके जैसे ही है। अगर ये कर सकते हो तो हम आगे बढ़ते दूसरे क्वेश्चन करते। टेक इट फॉर एज फॉर योर होमवर्क। ठीक है। नाउ दिस वन इज सिमिलर, डिफरेंट, बट या ये ट्राई करो। लेट्स सी, यहाँ देखते हैं, यहाँ पे थोड़ा ऊपर नीचे करने वाले हो आप। ये करो, ट्राई दिस। यू हैव 2 मिनट्स। लेट्स से 3 मिनट्स ले लो, ट्राई। 3 मिनट्स इज मोर देन इनफ। ट्राई। होप यू guys have solved the question. Let's see what is the solution और how to approach। इससे डिफिकल्टी आ रही हो देखो यहाँ पे। सिंपली सी है क्वेश्चन क्या कह रहा है। ए एन सी आर इंटीजर्स। ओके, ए एंड सी आर इंटीजर्स। तो इंटीजर से ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं। ओके, एंड ए इज lie in this range। सेकंड क्वेश्चन का 10 आंसर। अच्छा, सेकंड कर लिया। अच्छा, मैं तो थर्ड वाला होमवर्क, बस सेकंड होमवर्क था, थर्ड वाला बोला था सॉल्व करने को। से बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे, अच्छा थर्ड भी कर लिया, वाह ग्रेट ग्रेट, दोनों कर लिया। दैट्स ए डेडिकेशन। थर्ड का 40 आर आपका। लेट्स सी व्हाट इज द आंसर। सो ए लाइज इन दिस रेंज, सी लाइज इन दिस रेंज। ओके, सी जो है लेस देन 0 है, लेस देन इक्वल टू 0 है। ए जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है एंड लेस देन इक्वल टू 6 में लाई करता है। हाउ मेनी इक्वेशंस ऑफ द फॉर्म these have real roots? Now simply real roots के लिए condition again, d should be greater than equal to 0। is nothing but b square minus 4ac which is greater than equal to 0। now simply here b square मतलब 100। चलो समझ में इसके लिए लिख दे रहा हूँ, 10 square minus 4 time of ac which is greater than equal to 0। now simply from here you can see 100 minus 4ac is greater than equal to 0। सिंपली अगर मैं ये -4ac को यहाँ भेज दूँ तो ये क्या बन जाएगा, +4ac। राइट, तो इसको यहाँ भेज देते हैं, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4ac। गॉट इट। यहाँ माइनस इधर जाके 0 के साथ प्लस हो गया। नाउ यू कैन सिंपली कैंसिल दिस। 4 से डिवाइड कर दो। अगर आप 4 से डिवाइड कर दो यू विल गेट 25 विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू ac। तो ac की वैल्यू जो है a इंटू सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 25 है। राइट। अब यहाँ तक तो मैं सॉल्व कर लिया। अब क्या करना है, नाउ सी। अब देखो थोड़ा इसको, ए जो है ए की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई कर रही। अगर मैं ए की वैल्यू को मैं एक जगह लिख लूँ तो मुझे पता चल गया ए की वैल्यू क्या क्या है। ए की वैल्यू 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 6 हो सकती है। सिमिलरली सी की वैल्यू क्या हो सकती है, एनीथिंग लेस देन 0 पॉसिबल। सॉरी, ग्रेटर देन 0। माय बैड, मैं जब से गलत बोल रहा हूँ। एनीथिंग ग्रेटर देन 0 पॉसिबल। तो सी जो है कुछ भी हो सकता है ग्रेटर देन 0, एनी वैल्यू। एनी वैल्यू ग्रेटर देन 0 इज पॉसिबल। लेट्स काउंट कितने इक्वेशन ऐसे पॉसिबल है। नॉट टफ वन, इजी था ये भी, बस आपको अप्रोच करना आना चाहिए। तो एज यू नो 25 शुड, ए सी शुड बी लेस देन 25, लेस देन और इक्वल टू 25। तो मैं चाहूंगा इससे बड़े नंबर से काउंट करूँ। मैं नहीं चाहूंगी मैं छोटे नंबर से काउंट करूँ। तो बिकॉज सी की तो कोई लिमिटेशन नहीं है, सी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है ग्रेटर देन 0। सी सी तो मतलब एक 1 से लेके 2 3 4 अंत काल तक मतलब चलते रहेगा, ये खत्म ही नहीं होगा। ठीक है, बट खत्म यहाँ पे मुझे फिक्स्ड वैल्यू गिवन है। राइट। सो मैं इस पे ट्राई करूंगा, ना कि मैं सी पे कैलकुलेशन करूंगा। आई विल, माई फोकस शुड बी ऑन ए। राइट, बिकॉज ए की जो है इनफाइनाइट वैल्यू है। लेट्स सी।
इन दिस सिनेरियो लेट्स से फर्स्ट आई विल से मैं ए को क्या ले रहा हूँ, 6 ले रहा हूँ, क्योंकि सबसे बड़ी वैल्यू 6 ही है। इफ आई विल से a इज इक्वल टू 6, हाउ मेनी वैल्यूज आर पॉसिबल टू गेट दिस सॉल्यूशन। ठीक है, तो 25 से छोटा बनाना है, कितने वैल्यूज पॉसिबल है, तो 6 का सबसे बड़ा वैल्यू देख लो, अपने आप बाकी के मिल जाएंगे। 6 6 36 नहीं पॉसिबल, 6 5 30, 6 4 24 पॉसिबल है। 24 है या नहीं है गाइस? 6 इंटू 4 अगर मैं कर दूं तो पॉसिबल है। तो यहाँ पे मैं सी के कितने वैल्यूज ले सकता हूँ, एनी वैल्यूज लाइक 1 2, और यू कैन से जीरो भी तो हो ही सकता है, कि जीरो भी तो है इक्वल टू। तो मैं कुछ भी ले सकता हूँ, 0 1 2 3 4। गॉट इट? समझा नहीं समझा? किसी को डाउट है? अंशु, इफ यू हैव एनी डाउट पूछ लो। ओके, सिमिलरली नाउ मैं ट्राई करूंगा ए इज इक्वल टू 5 लेके। अब मैं ए इक्वल टू 5 ले रहा हूँ, तो मुझे पता है 25 है, एंड मुझे ये भी पता है 5 इंटू 5 कितना होता है, 25। ये तो पॉसिबल है ना, 5 इंटू 5 तो मैं ले सकता हूँ। तो मैं सी की वैल्यू कहाँ तक ले रहा हूँ, मैं सी की वैल्यू 5 तक ले रहा हूँ। तो एनीथिंग पॉसिबल फ्रॉम 0 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ पे कितने वैल्यूज है, चलो बाद में काउंट करेंगे, पहले सब सॉल्व कर लेते हैं। नाउ ए इज इक्वल टू 4। इन दिस सिनेरियो ए की वैल्यू जब मैं 4 ले रहा हूँ, तो मैं कर सकता हूँ ना, 4 इंटू वट, 4 6 24। इससे बड़ा तो मैं जा नहीं सकता हूँ। तो एनी वैल्यू पॉसिबल फॉर सी, सी की वैल्यू अब मैं 6 तक लेके जा रहा हूँ। तो एनीथिंग पॉसिबल फ्रॉम 6 टिल 6। तो 0 1 2 3 4 5 एंड 6। सिमिलरली ए इज इक्वल टू 3। अब इस केस में देख लो, 25 इज लेस देन 3 इंटू किसके साथ, 3 7 20 एंड 3 8 24। तो टिल 8, तो एनी वैल्यू पॉसिबल फ्रॉम 0 to 8, कोई भी वैल्यू मैं ले सकता हूँ। सिमिलरली नेक्स्ट लास्ट वन, ए इज इक्वल टू 2। 25 है, ए इज इक्वल टू 2 है, तो 2 से क्या हो सकता है, 2 2 9 सा 18, और 25 है ना, 2 10 सा 12, एंड या 12 तक। 2 से 12 तक में कोई भी वैल्यू ले सकता है, बिकॉज 2 12 सा 24 होता है। तो एनी वैल्यू पॉसिबल टिल 12। तो सी की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई, 0 से लेके 12 तक कोई भी वैल्यू। नाउ लेट्स काउंट द टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। यहाँ पे कितने हो गए, 1 2 3 4 5। 5 फ्रॉम हियर, 6 फ्रॉम हियर, 7 फ्रॉम हियर, 0 to 8 9 फ्रॉम हियर, एंड 0 to 12 13 फ्रॉम हियर। एड दिस वैल्यू यू विल गेट योर आंसर। तो अगर मैं ऐड कर दूं तो ये हो जा रहा है, कितना हुआ ये, 20 एंड 29 30 40 वैल्यू, 40 इज द आंसर। होप इट इज क्लियर। इजी क्वेश्चन है, कैट में ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते कभी कभी। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी को डाउट है यहाँ पे? नो डाउट, गो अहेड। चलो फिर, नाउ सॉल्व दिस वन। द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट्स ऑफ इक्वेशन। ये इक्वेशन है, आपको अगर मैं अच्छे से लिख दूं से, तो ऐसा है कुछ इक्वेशन दिखने में, x+1/x इसका होल स्क्वायर माइनस 3 टाइम x+1/x +2 इज इक्वल टू 0। अब इस ऐसे क्वेश्चन में क्या करना, कभी भी यू कैन सी x+1/x, ये जो यहाँ है ये सेम यहाँ भी दिख रहा है। तो मैं अज्यूम कर सकता हूँ ना, आई वुड से लेट a इज इक्वल टू, a मतलब y ले लो, y इज इक्वल टू x+1/x। So my equation become y square minus 3y+2 is equal to 0। क्या ये सॉल्व कर सकते हो आप? यू कैन। इसे सॉल्व करो एंड डू लेट मी नो कि y की वैल्यूज क्या आ रही है। 2 2 वैल्यूज बता रहे हो क्या, 2 और 1? अच्छा, वैल्यूज बता रहे हो।
यार वाई की वैल्यू पूछा था मैंने, लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस। बहुत इजी है, सबसे पहले सेशन में ही बताया था, मस्त तरीके से सॉल्व करो इजीली। स्टेप वन, फॉलो द स्टेप्स एवरी टाइम। कोफिशिएंट ऑफ वाई और सी को मल्टीप्लाई कर दो, मतलब ए सी को मल्टीप्लाई कर दो, तो यू विल गेट ए इंटू टू इज नथिंग बट टू। स्टेप टू, ब्रेक टू इन सच अ वे कि आपको वैल्यू जो यहाँ पे -3 मिल जाए, तो मैं बोल सकता हूँ टू वन ज़ा टू, बिकॉज मुझे माइनस चाहिए, तो मैं बोल सकता हूँ -2 -1। स्टेप थ्री, सिंपली डिवाइड it by coefficient. Step 4, which is your final step, change the sign। यहाँ से आ गया 2, यहाँ से आ गया 1, तो 2 1 आ गए y के वैल्यूज, तो y की वैल्यू 2 है, एक है 2, एक है 1। अब देखो, अब थोड़ा सा यहाँ पे समझो, मैंने क्या लिया था, मुझे y की वैल्यू फाइंड आउट करना है, नहीं मुझे x की, मतलब डिस्टिंक्ट रियल रूट्स चाहिए। किसका चाहिए? x का रियल रूट्स चाहिए, ना कि y का। तो यहाँ पे आवेश में आके 2 आंसर मार्क मत कर देना कि हम जल्दी जल्दी में 2 मार्क कराए, गलती हो गई सर। तो हमने क्या कहा था, x+1/x इट इज इक्वल टू वाई। तो मैं एक बार बोल सकता हूँ इट इज इक्वल टू 2, एक केस में तो ये पॉसिबल है। इन सेकेंड केस आई वुड से x+1/x इट इज इक्वल टू 1। these are the two possibilities which I have right now. Agree? Now here, let's solve it. Let's solve it now, because I see the 1 upon x, like x is in the denominator, I simply multiply those complete equation by x. What I can do, I can multiply this equation by x, so I will get x square plus 1 is equal to 2x. Solving further, I will get x square minus 2x plus 1 is equal to 0. Now from here, if I solve in the same method, I will get what? The first value should be 1, and if I divide 1 into two parts, I will get 1 1s are 1, that is -1 -1. Next step should be divided by coefficient of x, that is 1, तो कुछ मुझे करने की जरूरत नहीं है। Simply I will go to last step, change the sign, that is 1 1। तो यहाँ से दो वैल्यू आ गए x के, एंड दोज आर इक्वल वैल्यू, एक 1 है, दूसरा भी 1 है। फ्रॉम हियर लेट्स सॉल्व दिस अगेन, because I have x in the denominator, I can simply multiply the whole equation by x, so I will get x square plus 1 is equal to x। ठीक है, मैंने क्या किया, इस पूरे इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई कर दिया। Solving it further, I will get x square minus x plus 1 is equal to 0। Now, if you solve this, if you solve this, what you will get? You will get answer, कुछ तो रेशियो रेशियो में आएगा, बट मुझे डिस्टिंक्ट रियल रूट्स पूछा है, तो आई कुड सिंपली चेक, बिकॉज आई नो इफ आई डिवाइड 1 into 2 like a part, I will get 1 or 1, either I will get 1 or 1, or there is no possibility। तो मैं ऐसे चेक करूँगा कि यार ये है क्या। तो अब इस केस में क्या करना है, ऐसे इक्वेशन दिख जाए तो सिंपली चेक द वैल्यू ऑफ डी। व्हाट इज द डीज वैल्यू? तो यहाँ से मुझे डी क्या मिल रहा है, 1 -4 which is nothing but -3। so because it is -3, I know it is, the roots are imaginary, roots are imaginary or complex, you can simply say। रूट्स कैसे कॉम्प्लेक्स है, तो मुझे ये देखना ही नहीं है। क्यों नहीं देखना, बिकॉज मुझे रूट्स कैसे चाहिए, रियल रूट चाहिए, एंड इट इज नॉट अ रियल रूट्स, इट इज इमेजिनरी, सो आई वोंट सी दिस। नाउ यू कैन सी हियर, मुझे एक्स के दो वैल्यू मिले, 1 and 1। तो अब जिसने तुक्का मारा था दो, वो तो खुश हो जाएगा कि यार दो वैल्यू तो आ गए, बट सी डिस्टिंक्ट पूछा है, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग। क्या ये दोनों अलग अलग है? नहीं, दोनों वन ही है यार, एक ही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इज 1 नॉट 2। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 1। होप इट इज क्लियर। समझा? समझा तो आगे बढ़ते हैं। ट्राई दिस सिमिलर क्वेश्चन। ओके, लेट मी ट्राई, देन यू कैन इसके बाद वाला सेम ट्राई कर लेना। अब यहाँ मुझे कहा क्या गया है, सी पी क्यू आर द रूट्स, वन ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, पी और क्यू जो है रूट्स है इस इक्वेशन के।
आर दी रूट्स ऑफ इक्वेशन, वन ऑफ द रूट्स हो गए यहाँ पे लगता है। आर दी रूट्स ऑफ इक्वेशन होगा, आर दी, ओके, यहाँ से काट दो, ये नहीं होगा शायद से, ये गलत हो गया, टाइपिंग एरर हो गया, इग्नोर दिस। सो पी क्यू आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन, दिस इज द इक्वेशन, इक्वेशन क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 11 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन के जो रूट्स है वो मेरे पास p और q है, राइट। इट मीन्स व्हाट इट मीन, मैं अगर किसी एक को ले लूँ, चलो q को हटा दो थोड़ी देर के लिए, q को भूल जाओ, या फिर q को साथ में रहने दो, चलो। ये दोनों रूट्स है, मतलब क्या है, x इज इक्वल टू p होगा एंड x इज इक्वल टू q होगा, यही रहा होगा, दैट्स व्हाई इट इज अ रूट। रूट्स इज नथिंग बट वैल्यू ऑफ x। So p and q are roots. It means x is equal to p and x is equal to q. Right, guys? Is it clear to all of you? If it is clear, now see. In next, they are asking what they are asking. Find the equation whose roots are p plus 3 and q plus 3. Now I have to find the equation whose roots are p plus 3 or q plus 3. What it mean? P plus 3, q plus 3. It means I want the like a equation in which x is equal to p plus 3, x is equal to p plus 3. This is what I want. And if I simply see here, from here, what I will get? P is nothing but x minus 3. P is nothing but x minus 3. And यहाँ पे भी तो मैंने बोला है x is equal to p है, बोला नहीं बोला? यस, आपने तो बोला ऐसे ही। अगर मैं इस इक्वेशन को p में कन्वर्ट कर लूँ, दैट इज पी स्क्वायर माइनस 5p माइनस 11, 5p गंदा सा दिख रहा है, 5p माइनस 11 इज इक्वल टू 0। इज इट करेक्ट और नॉट? करेक्ट है या गलत है? बिकॉज x इज इक्वल टू p, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको। नाउ सिंपली व्हाट यू कैन डू, बिकॉज आपको ये वाला इक्वेशन बनाना है, दिस वन, वेयर द x इज इक्वल टू p प्लस 3, यू कैन सिंपली रिप्लेस p बाय x माइनस 3। तो आप यहाँ पे क्या करो, इस इक्वेशन में, दिस इज व्हाट द इक्वेशन यू हैव, इस इक्वेशन में इसको ले जाओ यहाँ और इसको कर दो चेंज, लाइक द इक्वेशन इज p स्क्वायर माइनस 5p माइनस 11 इज इक्वल टू 0। सिंपली p के जगह क्या पुट कर दो, x माइनस 3, तो यू विल गेट x minus 3 whole square minus 5 into x minus 3 minus 11 is equal to 0. Now simply open this whole square. अब भाई जिसको नहीं पता उनके लिए थोड़ा सा आइडेंटिटीज याद कर लो। ग्रीन पेन कहाँ है, वेर इज माई ग्रीन पेन, दिस इज अ ग्रीन, ओके। सो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, इसका फॉर्मूला इज नथिंग बट ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सिमिलरली ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सिमिलरली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। दीज आर द थ्री वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज, algebraic identities, so you can remember these identities, very very important। ठीक है, तो ये याद रहना चाहिए। अप्लाई दिस सेम, इन दिस केस x is equal to a and minus 3 is equal to b, so I could simply open this, what I can do, x square, वापस पेन कर चेंज, एक्स स्क्वायर माइनस 6x, 6 कैसे आ गया, 2 3 2 इंटू 3 6 इंटू एक्स प्लस 9 माइनस, और सिंपली मल्टीप्लाई दिस, विल गेट अ 5x minus 5x minus 3x plus 15 minus 11 is equal to 0. Solve it further, you will get your answer. You will get like a x square minus 11x, 15 plus 9 minus 11. So this is nothing but minus 2 and this is 13 is equal to 0. So for this equation, value of x is equal to nothing but p plus 3
और यू कैन से x इज इक्वल टू क्यू प्लस थ्री। होप इट इज क्लियर। अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आपको p प्लस थ्री और q प्लस थ्री मिलेगी। एंड ये इक्वेशन कहाँ पे है? दिस इज द ऑप्शन सी। समझा? अगर ये समझा हो तो सेम एक क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ जरा, देखे कितनों को समझ में आया। देखो फर्स्ट क्वेश्चन सेम है। द इक्वेशन हुज रूट्स आर टू मोर देन द रूट्स ऑफ, लेट्स से द फर्स्ट वन, द रूट्स ऑफ आर पी एंड क्यू। मान के चलो, चलो पहले वाले का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हम। सो रूट्स आर पी एंड क्यू। इस इक्वेशन का रूट्स है किसका? थोड़ा सा मैं elaborate कर देता हूँ, उसके बाद आपको ही करना है। द इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर प्लस 18x प्लस 36 इज इक्वल टू जीरो। इसके जो रूट्स है, सो हियर x इज इक्वल टू p और x इज इक्वल टू q, एनी वन किसी एक को ले लो। नाउ यू हैव टू फाइंड द इक्वेशन, you have to find the equation whose roots are two more than the root of this। मतलब यहाँ पे x की वैल्यू 5 p है, तो you will get here, you have to be find p plus 2, और if the value of x is q, you have to find q plus 2। तो इसके लिए जो इक्वेशन बनता है वो आपको निकालना है। फॉलो द सेम अप्रोच और इक्वेशन बताओ। ओके, नाउ सिंपली सी। अब you don't have to consider both p or q, any one of the value is possible, like good to go and solve the question। I would simply replace this equation. In this equation, I will simply replace x is equal to p. I will get p square plus 18p plus 36 is equal to 0. Now, what I told you here, if you put like a consider this equation here also, the p square minus plus 18p plus 36 is equal to 0. Simply replace p. Now you can find the value of p from here also. For this equation, the value of p is different, because here you can see p is equal to x, but here it will got changed। और you can do with q also। ऐसा कुछ नहीं है necessary कि आप p से ही करो। You can follow any of the approach, one of the approach। Now simply see here, here from here you will get a p is equal to x minus 2। Put x minus 2 in place of p, plus 18 into x minus 2 plus 36 is equal to 0। Now open this using identity, you will get x square minus 4x plus 4 plus 18 into x, 18x minus 18 to the 36 plus 36 is equal to 0। Plus 36 minus 36 cancel, okay? And if you solve ahead, you will get something like x square minus 4x plus 18x is nothing but plus 14x plus 4 is equal to 0। Yes, those who got this equation, like I see Anshu and Avneet have solved this and they have got this equation। Good guys, you are doing very well। Okay, सेकंड भी कर लिया, गजब। ये बात, ये डेडिकेशन रहनी चाहिए ना। सिंपली सी। अब ये तो लॉन्ग मेथड है, अब सेकंड कैसे करोगे? सेकंड में क्या बोला, लेस है। लाइक यहाँ पे आपको बोला x इज इक्वल टू पी माइनस टू, ऐसे बोल दिया है, तो यहाँ से आप देखोगे तो x की वैल्यू क्या आ रही है, सॉरी p की वैल्यू क्या आ रही है, x प्लस टू। p की वैल्यू क्या आ रही है? सिंपली वैल्यू फॉर b इज x प्लस टू। simply put x plus 2 in this equation, you will get the answer for the same, because ये equation same है दोनों में। now अब इतना लंबा हमें नहीं करना है, ये तो था अप्रोच बेसिक। पेपर में हमें इतना टाइम थोड़ी वेस्ट करना है। पेपर में हम क्या करेंगे? नाउ सी, पूछा क्या उसने? टू मोर। लेट्स से ये तो समझ में आ रहा है ना, अगर एक की वैल्यू p है तो दूसरा क्या बोल रहा हो, p प्लस टू की बात कर रहा है, राइट? तो सिंपली क्या करना आपको, जो भी पूछा है ना उसने, एक्स स्क्वायर प्लस 18x प्लस 36 इज इक्वल टू 0। I know here is p plus 2, I could simply what do, I simply do what, मैं यहाँ पे सीधा x minus 2 कर दूंगा।
बिकॉज यहाँ +2 है, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, -2। दैट्स इट, खत्म। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ बोला p इज इक्वल टू नथिंग बट p-2। बिकॉज यहाँ माइनस है तो मैं क्या करूंगा, इन दिस केस आई सिंपली रिप्लेस x बाय x+2। यहाँ माइनस है तो मैं प्लस से रिप्लेस कर रहा हूँ, यहाँ प्लस है तो मैं माइनस से रिप्लेस कर रहा हूँ। दैट्स इट। इफ यू सॉल्व दिस यू विल गेट योर आंसर। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? अब ये तो ठीक है सर, प्लस माइनस तो बता दिए, ये तो बच्चों वाला खेल हो गया। मल्टीप्लाई में बताओ, डिवाइड में बताओ क्या होगा। तो सी दिस इज अ मल्टीप्लाई, दिस इज अ डिवीजन। सेम रूल। अगर यहाँ पे बोल रहा है p इज इक्वल टू, देख देखो, द इक्वेशन फॉर दिस, for this equation the roots is, if the root is p, you have to find the equation whose roots are 3 time of p. Now आपने तो बताया था, if there is a plus you can simply do minus, if there is a minus you can simply do plus. What can we do in this case? So in this case what you can do, यहाँ भी same rule, because it is in multiply, what you can do, you can simply do divide it. Because it is here in multiply you can simply divide it. That's it. समझ में आ रहा या नहीं आ रहा? Right. In next one what they are asking, let's say अब यहाँ divide में है. Now it is said in next question that if the equation for this, okay, if the roots for this equation is p, you have to found the equation whose root is p/3. Now because it is already in division, what I can do, I can simply multiply it and nothing, उससे ज्यादा मुझे कुछ करना नहीं है, I don't have to do anything else. Simply I could do 3 into x, because ये divide में, यहाँ पे मैंने multiply में डाल दिया। बस इतना करना है, एक लाइन में आंसर, बाकी आपकी स्पीड पे है। बट क्या समझा? अगर समझ गया तो आगे बढ़ते हैं। इसको देखो, ये भी आप लास्ट वाले टाइप से कर सकते हो, लेंदी वे। मैंने ये भी वही किया है, बस मैंने यहाँ पे शॉर्टकट में सीधा सॉल्व किया है। आई डोंट वांट टू कंसिडर दिस थिंग, आई जस्ट रीड दिस लाइन एंड आई कैन फ्रेम दिस इक्वेशन। होप इट इज क्लियर, यू कैन ट्राई दिस। कोई डाउट हो तो नेक्स्ट क्लास में आओ, विल डेफिनेटली ट्राई टू रिजॉल्व। नाउ हियर इन दिस केस आल्सो, फाइंड द इक्वेशन whose roots are reciprocal of the roots of this। सिमिलर है यार, कुछ नया नहीं है। अगर रूट्स अगर p है तो पूछ रहा है रेसिप्रोकल होगा जिसका रूट, मतलब 1/p होगा। क्या करना है? कुछ नहीं करना है, सिंपली रिप्लेस। लेट्स से यहाँ पे देख लो, इफ x इज इक्वल टू p है, आपको क्या करना है, x इज इक्वल टू 1/p करना है। तो फ्रॉम हियर व्हाट यू विल गेट, फ्रॉम हियर यू विल गेट सिंपली p इज इक्वल टू 1/x। 1/x से रिप्लेस कर दो इसको यार, खत्म। रिप्लेस x बाय 1/x। दैट्स इट, यू विल गेट योर आंसर। नाउ सी दिस क्वेश्चन, ये बढ़िया है। अब कोई ट्राई करना चाहेगा जो मैंने ट्रिक बताया वो? यहाँ भी लगता है ट्रिक, ऐसा नहीं नहीं लगेगा, बस दिमाग चलाना है आपको। चलो बताओ जरा, ट्रिक से सॉल्व करके कितने देर में कर रहे हो? लेट्स सी द टाइमिंग, हाउ मच टाइम यू विल टेक टू सॉल्व यूजिंग द ट्रिक और द सिंपलेस्ट मेथड। ओके, सो सम ऑफ यू टुक अ टाइम, जिन्हें टाइम लगा है, लेकिन नो वरीज, लेट्स सी कैसे करना है। जैसे मैंने बताया, हियर x इज इक्वल टू p, the root of the one of the root of the equation of this, again one of the root यार, this is something, ये गलत है, ठीक है, ये भूल जाओ। if one, if the root of equation, ठीक है, दिस इज द इक्वेशन। अगर यहाँ पे इसका रूट अगर p है या फिर q हो, कोई एक लेना है हमें, हमें दोनों नहीं चाहिए। then you have to find the equation whose roots are 2p+1। now simply see, मुझे बोल क्या रहा है इन दिस केस सिनेरियो, दिस इज द इक्वेशन। ये जो है इसके लिए इक्वेशन क्या है मेरे पास,
2x² minus 5x minus 12 is equal to 0. Now if I simply replace 2, I will get 2p² minus 5p minus 12 is equal to 0. ये तो टिपिकल अप्रोच मैंने बताया था जो, राइट. बट आपको इतना भी नहीं करना है. आपको सिंपली यहाँ पे लिखना है कि व्हाट इज द वैल्यू फॉर x इन दिस इक्वेशन. इन दिस इक्वेशन x इज नथिंग बट 2p plus 1. If I solve it further, I will get what? X minus 1 is equal to 2p, but I have to find the value for p. So from here, the value for p is x minus 1 upon 2. तो थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगा कि गलत ना हो. इफ आई एम गोइंग टू सॉल्व, मैं ये भी ना करूँ, मैं डायरेक्टली कर दूंगा. बट फॉर यू गाइस, आई वुड हाईली रिकमेंड थोड़ा मेहनत कर लो. 10 सेकंड लगेंगे, 10 सेकंड लगेंगे, लेकिन गलत नहीं होगा. कभी कभी मैं गलत भी कर देता हूँ, दैट्स व्हाई मैं बोल रहा हूँ 10 सेकंड लगेगा इसके लिए. सिंपली रिप्लेस दिस. एक्स को रिप्लेस कर दो विद दिस इक्वेशन. हाउ यू कैन रिप्लेस? एक्स के लिए लिख दो x माइनस 1 अपॉन 2 द होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन 2 minus 12 is equal to 0. If I solve it further, I will get 2 into, let's solve it. अब ये 2 को मैं अगर बाहर निकालूं तो it will become a 4. So from here I will get x square minus 2x plus 1 minus 5 upon 2 into x minus 1 minus 12 is equal to 0. Here if I divide it, I will get 1 upon 2. If you can see here, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है. तो मैं अगर इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, इफ आई सिंपली मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय 2, आई विल गेट 2 into 1 by 2 time of x square minus 2x plus 1 minus 2 into 5 by 2 into x minus 1 minus 2 into 12, which is equal to 2 into 0. This 2 cancel. This 2 cancel. I will simply get x square minus 2x plus 1 minus 5 time of x minus 1 minus 24 is equal to 0. क्योंकि 2 into 0 क्या होता है? 0. Open the bracket, you will get x square minus 2x plus 1. Simply when you open this, because it is a minus sign, the sign from the bracket will get changed. 5 minus 5 into plus x, you will get minus 5x. Minus 5 into minus 1 minus minus plus 5 1s are 5 minus 24 is equal to 0. If you solve it further, you will get x square minus 7x plus 1, 1 plus 5, 6. And if you minus 6 from 24, you will get 18, which is a minus 18 is equal to 0. The option C is the answer. So those who got C as an option, सही है guys. सही जा रहे हो, ऐसे ही जाओ, ऐसे ही पढ़ो. मतलब दिस इज सिमिलर वन. इन शॉर्ट अगर एक लाइन में पूछूं क्या यहाँ पे रिप्लेस करना है, कैसे बताओगे? कैसे, किससे रिप्लेस करना है? यू हैव टू रिप्लेस इट बाय, बताओ किससे करना है रिप्लेस? सिर्फ रिप्लेस बताओ कैसे करोगे. यू कैन सिंपली रिप्लेस इट बाय x माइनस 1 अपॉन 3. खत्म. गॉट इट. इससे रिप्लेस कर दो, यू विल गेट योर द इक्वेशन. नाउ दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, आई थिंक. yes, this is the last question of the day. Try this one, guys. This is a very good question. So you've solved like a, there is two way to solve. One is either you can do simply multiply it. Okay, what you can do, you can simply multiply it, and that is the one way. Like you can simply multiply this whole equation with this and then solve. But that will be a long approach. That will be a long approach. Why? So the second approach is what? See, अगर मैं उसे multiply कर दूं तो you will get the value in the fourth power, like k to the power 4. इसमें value मिल जाएगा. And to solve this, you also have need to like factorize this. तो ये तो लंबा अप्रोच हो गया. ठीक है. अब आप बोलेंगे कि इसे मुझे खोलना ही क्यों है, ओपन ही क्यों करना है? ऑलरेडी इसको मैं सिंपल फैक्टराइज नहीं कर सकती क्या? या यू कैन डू, बट द इशू इज
If in the place of 120, if they have mentioned 0, then you can solve it easily. But because here is 120, so there is issue, might be possibility. Either though you can factorize this into two values, these value can't become, or you can say it is a tough to get this value, तो वो भी issue हो सकता है. बट ये सिचुएशन इसमें नहीं होगा, इसमें आप निकाल सकते हो. सेकेंड अप्रोच इज, you can assume k equal like k plus k square minus 3 और k square minus 7 to or some value. कोई भी एक नंबर ले लो, उसको ये कर दो, बी कर दो, ऐसे कर सकते हो. बट वो भी थोड़ा लेंदी अप्रोच है. व्हाट यू कैन डू हियर, इफ आई वाज लाइक, जैसे मैंने फर्स्ट टाइम किया था सॉल्व, व्हेन आई सीन द दिस क्वेश्चन इन फर्स्ट टाइम, आई सिंपली सॉल्व इट by factorization is equal to 120. If you divide this और फैक्टराइज दिस, यू कैन सॉल्व इट इजीली. फैक्टराइज करोगे तो क्या आएगा, टू की वैल्यू है, देखो यहाँ पे टू है, टू की वैल्यूज निकाल दो, क्या होंगे, टू वन जार टू, दैट इज माइनस, इफ इट सी माइनस टू माइनस वन, मल्टीप्लाई विल बी टू एंड द एडिशनल विल बी माइनस थ्री. तो यहाँ से दो वैल्यूज आ गए, राइट. विल गॉट अ टू वैल्यूज फ्रॉम हियर. टू वैल्यू फॉर के इज, वन इज के माइनस टू, second one is k minus 1. Similarly, if you solve this one, if you solve this one, what you will get, 12 है, 12 का तोड़ो, 7 लाना है आपको. How can you make it 7? So 3 4s are 12. This is the, because I need a minus, so I will say minus 3 minus 4. So I got, from here I will got what I got. One is k minus 3. The second one is k minus 4, which is equal to 120. If I solve it further, अगर मैं इसको एक अच्छे से कायदे से मैं अरेंज कर लूँ, I will say k minus 1, k minus 2, k minus 3, and k minus 4 is equal to 120. अब क्या कर सकते हो, क्योंकि मैंने इसको चार भागों में तोड़ दिया है, तो मुझे इसे भी फोर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा. ओके, तो आई कुड सिंपली फैक्टराइज दिस ऑल्सो. 120 को फैक्टराइज करो, क्या पॉसिबिलिटीज है, सिक्स टू जा, राइट. सिक्स से 20 से अब कर दूंगे तो, बट रिमेंबर फैक्टराइजेशन ऐसे नहीं होता है, तो मैं फैक्टराइजेशन नहीं कर रहा ऐसे, तो सिंपली से डिवाइड कर दो, ऐसे कर दो. विल गेट वैल्यू लाइक दिस, सिक्स एंड फाइव, फोर, फाइव ऑफ द 20, 20 into 6 is 120. But and 1 you will get a 1, एक वैल्यू 1 हो सकता है. क्या ये पॉसिबल है, क्या ये पॉसिबल है, इज इट पॉसिबल, नो, मुझे तो नहीं लग रहा है पॉसिबल है. देख लो, के माइनस वन अगर मैं करने जाऊँ, के माइनस वन क्या लिख सकता हूँ मैं, दैट इज के माइनस वन शुड बी इक्वल टू सिक्स, राइट. अगर मैं सिक्स ले लूँ, यहाँ से क्या आ जाएगा, के इज इक्वल टू सेवन, क्योंकि नॉट पॉसिबल ना, सिक्स तो पॉसिबल ही नहीं है. तो यहाँ से मैं इसे डिवाइड करूंगा, और एंड आई विल गेट समथिंग लाइक, मैं इसे और भी डिवाइड कर सकता हूँ अलग एक वे में. लेट्स से फाइव, फोर, थ्री, टू. एंड इफ यू डोंट रिमेम्बर, एक सिंपल सा ट्रिक है फैक्टराइजेशन, एन फैक्टोरियल. ठीक है, अगर आपको पता हो तो फाइव फैक्टोरियल की वैल्यू क्या है, फाइव फैक्टोरियल, एन फैक्टोरियल मतलब क्या होता है, एन इंटू एन माइनस वन, एंड सिंपली ऐसे लिख लो, वैसे मत लिखो, वन इंटू टू इंटू थ्री इंटू टिल द एन. सिमिलरली वन इंटू टू इंटू थ्री इंटू फोर इंटू फाइव. अगर आपको ये याद है कि फाइव फैक्टोरियल की वैल्यू क्या है, दिस इज नथिंग बट 120, तो आप इजीली कर लोगे ये क्वेश्चन को. now सिंपली ये बताओ, ये फाइव किसके इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा फाइव, यार सिंपल सी बात है. मैं माइनस कर रहा हूँ वन, और ये सारे वैल्यूज इक्वल, मतलब कोई भी एक वैल्यू के तो इक्वल होना चाहिए ना. आई वुड सिंपली से के माइनस वन इज इक्वल टू फाइव. ठीक है, देन ओनली आई विल गेट के इज इक्वल टू सिक्स. नाउ सी, इफ के इज इक्वल टू सिक्स, क्या यहाँ से मुझे ये वैल्यूज मिल रही है, लेट्स से के इज इक्वल टू, यहाँ से फाइव मिल जा रहा है, यहाँ से आपको क्या मिल जा रहा है, फोर मिल जा रहा. के अगर मैं सिक्स रख दूँ यहाँ पे, तो यहाँ से आपको थ्री मिल जाएगा, यहाँ से आपको टू मिल जाएगा. तो फ्रॉम हियर डायरेक्ट यू विल डायरेक्टली गेट के इज इक्वल टू सिक्स. तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो मार्क करो, आगे बढ़ो. ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए ऐसे क्वेश्चंस में, शुड सिंपली मार्क्स एंड आगे बढ़ना है.
कभी कभी क्या होता है ना, आप ज़्यादा सोचने लगते हो और गलत कर देते हो। तो आजकल मैंने वो छोड़ दिया मैंने। मैं ज़्यादा सोचता नहीं हूँ। गलत हुआ तो हो सकता है, बट ज़्यादा नहीं करना चाहिए गलती, थोड़ा सोच लेना कि सही है कि नहीं। बट या इफ यू गॉट अ कॉम्बिनेशन लाइक दिस, you simply know yes, this should be a correct combination. You should simply mark and move ahead. Hope it is clear. There are some questions in this sheet you can solve, and we are done for today. If you have any questions, you can ask me after the after I off the recording. And this is the offering from the PrepBee. You can check out our website for the same. What we are offering, mentor, like a mentorship program, and it's a one-to-one personalized mentorship. Monthly दो mentorship session होंगे आपके. Monthly there is two mentorship session. So if you want, you can enroll into it. Apart from this, you will get a detailed mock analysis. And as per the plan, you will get a 6-9 series master question booklet and master classes. And mentorship के तो मैंने एक और चीज़ बताई है. Those who are joining me regular live classes, उनके लिए मैं एक separate group बनाऊंगा. And I will give them a free mentorship, जो कि group mentorship होगा, personal नहीं होगा, group mentorship होगा. So join करो live. And if you want to join our community, you can simply visit or check link in description. Till the time, all the best. Have a good day. Jai Siya Ram.